سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا، امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا، پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان آمد کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کو گلدستہ پیش کیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم اس موقع پر موجود تھے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی گورنر جنرل سیستان بلوچستان، نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر اربن ڈیولپمنٹ ٹرانسپورٹ، نیشنل ایرانی آئل کمپنی کے سربراہ، وزیر زراعت کے خصوصی نمائندے اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں وزرائے داخلہ نے اہم ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس دوران کہا کہ پاکستان آمد پر اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ علاقائی صورتحال پر بھی پیش رفت کی امید ہے۔ دورہ مفید ثابت ہوگا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا، اپنے بھائی محسن نقوی سے دوبارہ ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ اور اب آپ کو بتائیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال تشویشناک ہے۔ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ تجویز ہے کہ کشمیر میں ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اور سچ کو سامنے لایا جائے۔ آزاد کشمیر میں اتنے ہی صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے جتنے پاکستان کے رہے ہیں۔ ماضی میں تجاویز دی ہیں کہ ایسے انتخابات کو صاف اور شفاف بنایا جائے۔ پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی پابندی ہے۔ ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا، خواجہ آصف سینئر سیاستدان ہیں، وہ کابینہ میں کولیگ رہے ہیں اور اسمبلی میں بھی کولیگ ہیں۔ چاہتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب ہوں۔ وزیر اعظم کی کامیابی میں وفاقی سطح پر بھی کچھ رکاوٹیں ہیں اور ان کو ایک ساتھی کی حیثیت سے تجاویز دوں گا۔ وفاقی وزیر کے کشمیری عوام سے متعلق رویہ، بیانات اور تبصرے شرمناک تھے۔ جب آپ اہم عہدہ سنبھالتے ہو تو اس عہدے کے مطابق لہجہ، گفتگو اور بیان دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر اپنا بیان واپس لے کر کشمیریوں سے معافی مانگیں یا وزارت چھوڑ کر اپنی بات پر قائم رہیں۔ وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کا احترام کرتا ہوں، میری تنقید جائز ہے، اتنی تنقید تو ان کو سننا پڑے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے جو تاثر گیا وہ اچھا نہیں گیا، امید ہے وہ اپنے بیان پر غور کریں گے۔ وفاقی حکومت نے کچھ لحاظ سے کامیابیاں حاصل کی ہیں، کافی بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعظم نیک نیتی سے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں حکومت ہے۔ بھارت اور اسرائیل ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ خیبر میں ریلوں میں بہہ کر 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لنڈی کوتل میں ریلے میں وین بہہ گئی، 3 افراد جاں بحق، 13 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلاب میں 2 گاڑیاں بہہ گئیں، مقامی افراد نے ڈرائیور کو رسیوں کی مدد سے نکالا۔ ادھر اپردیر کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے، جبکہ استور میں سیلاب سے گھروں، فصلوں اور رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ خیبر میں طوفانی بارشوں اور ریلوں میں بہہ کر 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق افغان خاندان کو تورخم لے جانے والی گاڑی ریلے میں بہہ گئی۔ گاڑی میں بچوں اور خواتین سمیت 16 افراد سوار تھے۔ بہنے والے 13 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ جاں بحق 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ جمرود میں 2 افراد سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہوئے۔ سیلاب سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب کے بعد ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مردان میں بارش سے مکان کی چھت گرنے سے بہن بھائی جاں بحق ہو گئے۔ وادی کاغان میں شدید بارش کے بعد سلائیڈنگ سے شاہراہ کاغان اور پانی کے کٹاؤ کے باعث جھیل سیف الملوک روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ اپر دیر میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے، جس سے دریائے پنچکوڑا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ کئی دیہاتوں میں سیلاب سے گھروں، فصلوں اور رابطہ سڑکوں کا نقصان پہنچا ہے۔ کراچی علاقے PCHS بلاک 2 میں دوران ڈکیتی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان مقتول سے موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان سے۔ راہیل، بتائے گا واقعے سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی اب تک؟
ECHS ब्लॉक 2 जहां पर अब से कुछ देर पहले फायरिंग का वाक़या पेश आया। हमारे बात हुई SSP ईस्ट नज़ीर शेख से, तो ये बताते हैं कि जो मकतूल था ये अपनी गली में बाहर, घर के बाहर मौजूद था। मुल्जिमान आए हैं मोटरसाइकिल पर और इससे कुछ लूट मार शुरू की है। इसने जो यानी शाहिदीन है पुलिस को बताते हैं कि इसने तमाम चीज़ें दे दी थी, मोबाइल फ़ोन, पर्स और दीगर, और लेकिन उसके बाद मुल्जिमान फरार होते वक्त इसको गोलियां मारकर भाग गए। और पुलिस हुक्म ये बताते हैं जो इब्तिदाई तौर पर डॉक्टर उनकी बात हुई तो 3 से 4 गोलियां इसको लगी हैं, और जो मजबूरी तौर पर अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये वाक़या डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आए। लेकिन पुलिस मजीद तहक़ीक़ात कर रही है। जो आसपास CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस भी हासिल की जा रही है। पुलिस हुक्म ये बताते हैं कि अमूमन डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मुल्जिमान 1 से 2 फायर करते हैं, लेकिन इसको 3 से 4 गोलियां लगी है। तो मुमकिन तौर पर ऐसा ना हो कि ये कोई जाती रंजिश या किसी और कोई और एंगल से तहक़ीक़ात में निकला है। तो इब्तिदाई तौर पर डकैती मज़ाहमत पुलिस इससे डिक्लेयर करती है, लेकिन मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है जिसके बाद ही असल सूरत वाज़ेह हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया राहिल सलमान, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके कायदाबाद में 1 माह पहले 2.5 साला कुलसूम के कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला की सगी चची और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने वाक़े को जिनसी ज़्यादती का रंग देने के लिए दरिंदगी और सफाकी की इंतहा कर दी थी। जियो न्यूज़ को बच्ची की DNA रिपोर्ट मौसूल हो गई, जिसके मुताबिक बच्ची के कपड़ों से कम से कम 3 अफराद के DNA मिले हैं। सवाल ये है अगर कातिल चची है तो बच्ची के कपड़ों पर पाए गए DNA किसके हैं, ये इस रिपोर्ट में जानिए। कैदाबाद में 23 जून को बेदर्दी से मौत के घाट उतारी गई 2.5 साल की कुलसूम के कत्ल में करीबी रिश्तेदार ही मुलव्विस निकले। SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने मीडिया को बताया कि इस कत्ल में मुलव्विस मकतूला बच्ची की चची सकीना और उसके भाई मुल्जिम नादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की जो चची हैं सकीना नामी, दर हकीकत शी वाज द वन हु किल्ड द पुअर चाइल्ड, और मारने के बाद गला दबा के उसको मारा गया, और मारने के बाद अपने कमरे में इन्होंने उसकी बॉडी को रखा। देन घर के अंदर से ही उन्होंने एक आटे की बोरी ली, उसके अंदर बॉडी को डंप किया। देन अपना जो इनका मायका है, इनके साथ ही वाला जो घर है, वहाँ पे बॉडी को लेके जाती हैं और अपने भाई को ये अपना हमराही मुल्जिम बनाती हैं और उसको ये टास्क देती हैं कि अब इसको रेप का रंग भी दो। पुलिस हुक्म के मुताबिक बच्ची को कत्ल करने की वजह ये थी कि बच्ची के दादा और घर वाले कुलसूम को ज्यादा प्यार देते थे। जो कातिला हैं सकीना, ये बताती हैं कि चूँकि इनके जो अपने बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे दे आर स्पेशल चिल्ड्रन एंड दे वर नॉट मेट विद गुड ट्रीटमेंट इन द हाउस, और जो बच्ची के दूसरे अहल खाना थे, बच्ची के दादा वगैरह, वो बच्ची से बहुत मोहब्बत करते थे। यही कुछ वजूहात बनी और ज़ाहिर घरेलू नाचाकी थी, लड़ाई झगड़े रोज़ का मामूल थे। जियो न्यूज़ को मौसूल मकतूला कुलसूम की DNA रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के कपड़ों और बोरी से 25 सैंपल लिए गए थे। तज्जिए के दौरान मालूम हुआ कि लाश से 3 से 4 अफराद के DNA मिले हैं, लेकिन वो इतनी मिकदार में नहीं थे कि किसी से मैच होते। इसलिए पुलिस तहकीकात में ये वाज़ेह नहीं हो सका कि बच्ची को अगर ज्यादती का निशाना बनाया गया तो कहाँ बनाया गया और उसमें कौन मुलव्विस है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन और साथी रिपोर्टर दानियाल सैयद के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। कराची की निजी सोसाइटी से अगवा 2 साला बच्चा ठट्टा के करीब से बाजियाब कर लिया गया, मुल्जिमान फरार हो गए। का ताल्लुक मंगोपीर में वाक़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां 2 साल का अजान 2 दिन पहले घर से बाहर निकला और गायब हो गया। घर वाले तलाश में लगे हुए थे कि वालिद को किसी जानने वाले ने बच्चे के अगवा की इत्तला दी, साथ ये भी बताया कि बच्चे को कहां रखा गया है। मेरा एक दोस्त आया है कि यार वो तेरा बच्चा घारों में है, मेरी लेबर की कॉल आई है, ठीक है। तो मैंने फ़ौरन SHO साहब को कॉल की कि यार वो घारों से है, तो इन्होंने फ़ौरन टीम तश्कील दी, जो कि मेरे साथ भेजी इन्होंने टीम, और वहाँ से जाके फिर हमने गांव से रिकवर किया बच्चे को। SSP वेस्ट तारिक इलाही मसूई के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जदीद ज़राए इस्तेमाल करके अगवाकारों की लोकेशन का सुराग लगा लिया। लोकेशन जो है जहाँ से कॉल्स आ रही हैं वो घारों की और डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की बन रही है जो है ना, तो यहाँ से फिर हमने इमीडिएटली अपनी टीम को वहाँ पे डिस्पैच किया। हमारी टेक्निकल टीम उनकी सपोर्ट पे मौजूद थी, और इस हवाले से स्पेशली थैंक्स जो है SSP साहब ठट्ठा का, हमने उनके साथ रब्ता किया। उनकी जो लोकल पुलिस थी उन्होंने भी हमें वहाँ पे हेल्प आउट किया, तो मीनवाइल हमने इसमें बच्चे को रिकवर कर लिया। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ठट्टा के करीब कार्रवाई की गई और बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया, ताहम मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस का बताना है कि बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। मुल्जिमान ने बच्चे की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक और कैमरा टीम के साथ दानियाल सैयद।
जियो न्यूज़ कराची। पुलिस ने लाहौर में कहना की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मां और तीनों बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। फॉरेंसिक नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। 17 जुलाई की शाम हमसायों की जानिब से बच्चों के लॉन्ड्री एरिया में गिरे होने की इत्तला दी गई थी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया खारदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई माह से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, जिसके बायस मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूमी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। कराची के इलाके खारादर, कोरंगी, लांडी और न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को पानी की किल्लत का सामना है। घरों में पानी न आने की वजह से लोगों को महंगे दामों टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे घरेलू अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक कई बार मुताल्लिका हुक्काम को शिकायत दर्ज कराई गई, ताहम मसला जूं का तू बरकरार है। हमारी बिल्डिंग में ही पानी नहीं आ रहा है, बाकी सब जगहों पे पानी आ रहा है। इन लोगों ने 4 महीने से हमारा पानी बंद कर दिया है, क्योंकि हम भर भर के खुद थक गए, बेजार हो गए। तो गरीब आदमी है, अब पानी भरवाए या फिर बच्चों को खिलाएं, ये आज की बात नहीं है। 4 महीने हो गए और हर दफा ये 4-5 महीने गर्मियों में ये पानी बंद कर देते। गवर्नमेंट के लिए मैं ये कह रही हूँ कि भाई हमारी तरफ देखो, अपने घरों की तरफ देख रहे हो तो हम गरीबों के घरों की तरफ भी देखो। हमारे भी बच्चे हैं, जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, हमारे बच्चों का भी सोचो थोड़ा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई फौरी तौर पर बहाल की जाए और खराबी की असल वजह से भी आवाम को आगाह किया जाए। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों और हुकूमत सिंध से अपील की है कि इस संगीन मसले का हंगामी बुनियादों पर नोटिस दिया जाए। उधर कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में बिजली की तवील बंदिश के बायस इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। खुदादाद कॉलोनी में 5 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने खुदादाद कॉलोनी सिग्नल पर एहतजाज किया। सड़क पर सामान जलाकर ट्रैफिक बंद कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज से बिजली नहीं है, बच्चे प्यासे और गर्मी से बेहाल हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। चंद अफराद बिजली चोरी करते हैं तो उसकी सज़ा पूरे इलाके के हज़ारों मकीनों को देना नाइंसाफ़ी है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि खुदादाद कॉलोनी हाई लॉस इलाका है, जहाँ हर 10 में से 8 यूनिट बिजली चोरी या उसकी अदायगी नहीं की जाती। इलाके में वाजबात की मालियत 1.5 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। जिन इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की वसूली नहीं, वहाँ लोड शेयरिंग है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का हल्का LS6 तहसील समानी ज़िला भंबर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल रज़ाक की इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इंतखाबी जलसा। इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। LS6 तहसील समानी ज़िला भंबर में जलसे से पहले रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनों और मकामी रहनुमाओं ने अमीर मुकाम का पुरतबाग इस्तकबाल किया। रैली के बाद जलसे से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना था राठुआ हरियाल पुल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए दिए, तामीराती काम जारी है। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल्स के क़याम पर काम जारी है। पार्टी टिकट मकामी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक चौधरी अब्दुल रज़ाक को दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और दिफा के लिए तारीखी खिदमात अंजाम दी। LOC के अवाम की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश, पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले काबिल फ़ख्र हैं। पाकिस्तान में नीदरलैंड्स के सफ़ीर ने पाकिस्तान लिमिटेड के हेड ऑफिस का दौरा किया है। डच सफ़ीर को FCEPL की क़यादत ने कंपनी की कारकर्दगी और कारोबारी तरक्की के मुस्तक़बिल के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में डेयरी वैल्यू चेन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर किया गया। डच सफ़ीर ने कहा कि बच्चों के लिए महफूज डेयरी मसनूआत तक रसाई को यकीनी बनाना अवामी सेहत के लिए नहायत अहम है। FCEPL के मैनेजिंग डायरेक्टर काशान हसन ने कहा, डेयरी सेक्टर लाखों पाकिस्तानियों के लिए ग़िज़ाइयत और रोज़गार का अहम ज़रिया है। डॉक्टर आसिफ महमूद अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी के मुतफ़िक़ा चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। तारीख़ में पहली बार जनूब एशियाई अमेरिकन को USCIRF का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ महमूद USCIRF के वाइस चेयरमैन थे। अमेरिका का आलमी मजहबी आज़ादी कमीशन इदारा खारजा पॉलिसी साजी में मावनत करता है और डॉक्टर आसिफ से पहले कमीशन की चेयरमैन विकी हर्टलर 13 बरस तक रुकन कांग्रेस रही थी।
पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ का USCIRF का चेयरमैन बनना भारत के लिए धचका है। डॉक्टर आसिफ मजहबी आज़ादी की पामारी पर भारत को इंतहाई तशवीश का हामिल मुल्क करार दिलाना चाहते हैं। USCIRF कमीशन का मुतालबा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। कमीशन का मुतालबा है कि अमरीकी तजारती पॉलिसी भारत में मजहबी आज़ादी से मशरूत की जाए। डेमोक्रेटिक लीडर डॉक्टर आसिफ महमूद का खारियां से ताल्लुक़ है। कैलिफोर्निया से कांग्रेस का इलेक्शन लड़ चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वफाकी अफसरान की सूबों में तैनाती के मामलात कमेटी बराए लॉ रिफॉर्म्स को भिजवा दिए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में स्कूल्स में 8,000 तनख्वाह पर भर्ती की गई आयाओं का मामला भी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। आजम मलिक रिपोर्ट करें। पंजाब असम्बली के इजलास में नुक्ता एतराज़ पर अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा कि वफाकी अफसरान की पंजाब में तैनाती को सूबे के अफसरान खुद से ज्यादती समझते हैं। अगर असम्बली अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगी तो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि जुडिशल कमेटी का मकसद सिर्फ अरकान के इस्तेहकाक से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेना है, उसे कोई अदालती इख्तियार हासिल नहीं। अंग्रेज चला गया मगर वो ज़हनियत अपनी जो थी इन सिविल सर्विस में छोड़ गया, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अगर आप जाएं ना किसी और डिस्ट्रिक्ट में KPK में जाएं तो DC हो कहता मिलता उठ के, यहाँ का तो AC नहीं बाहर निकलता है। वी आर फेसिंग दैट ना। जुडिशल कमेटी ऑफ दिस हाउस हैज़ नो जुडिशल फंक्शन विच हैज़ बिन एनविसेज्ड टू द जुडिशल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ये उसका कोई काम नहीं है। वक्फा सवालात में अमजद अली जवेद ने सरकारी स्कूलों में 8,000 रुपये माहाना पर भर्ती आयाओं का मसला उठाते हुए कहा कि इनमें से 80% आला तालीम याफ्ता हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन अदनान ने जवाब दिया कि आया रोजाना सिर्फ 3 घंटे काम करती हैं। पैनल ऑफ चेयरमैन राजा शौकत भट्टी ने जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मामला मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वक्फा सवालात खत्म होने पर हुकूमती रुकन अली हैदर नूर नियाजी ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर घंटियां बजाने का हुक्म दिया गया। अपोजिशन कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिस पर इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन AR अदनान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची से शहरियों को बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर रकम बटोरने वाला 7 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान से जदीद असलहा, पुलिस की वर्दियां, लैपटॉप और दर्जनों पासपोर्ट बरामद हुए हैं। 50 से ज़ायद मुतासिरीन भी सामने आ गए। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। FIA हुकाम ने कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एल में कार्रवाई की और शहरियों को बैरून मुल्क भेजने का झांसा देने वाले 7 रुकनी मुबैना गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बताया कि मुलजमान ने कई शहरियों से रकम बटोरी। उनको पता चलता था कि ये मेरा तो काम नहीं हो रहा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, वो अपने पैसे वापस लेने जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने ये जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स आप देख रहे हैं, ये इन्होंने रखे हुए थे, 7 पुलिस की यूनिफॉर्म्स रखी हुई थी। ये अपने बंदों को यूनिफॉर्म पहना के पुलिस वाले शो करके उनको डराते धमकाते थे ताकि ये दोबारा लोग वहाँ पे इनसे पैसे लेने के लिए ना जाएं। और ये 7 लोग हैं, इसमें 7 के 7 हमने गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से जदीद हथियार, एमुनेशन, पुलिस की वर्दियाँ, लैपटॉप और दर्जनों पासपोर्ट्स बरामद हुए। इन्होंने हमसे तकरीबन 54 लाख रुपए अब तक के ले लिए हैं और पिछले 8 महीने 3 बंदों से 54 लाख रुपए ले लिए हैं, क्योंकि सर टोटल 75 लाख रुपए का हमारा काम था। तो 1 साल का वर्क वीज़ा हमें दे रहे थे। इन्होंने तकरीबन 4 लाख हमसे मांगे थे सऊदी अरब के लिए, तो मेरा वीज़ा भी आ गया, FTC बिल्डिंग में मैं गया, फिंगर वगैरह भी सारे हो गए। इसके बाद भी मतलब ये झांसा देते गए, धमकियां देते गए। हम जब भी पेमेंट के लिए जाते थे ये हमें धमकियां देते। से मैंने बात की कतर वर्क परमिट के लिए, तो उनको मैंने 2,15,000 दिए थे वर्क परमिट का, तो उसके बाद उन्होंने ऑफिस बंद करके भाग गए। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिमान गुज़िश्ता 5 साल से मुख्तलिफ नामों से जाली ट्रैवल एजेंसियाँ चला रहे थे। उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची।